ملا اختر منصور پاکستان میں امریکی ڈرون حملے کے دوران مارا گیا۔ سینئر طالبان رہنماؤں اور افغان قیادت کی تصدیق۔ طالبان رہنما امن مذاکرات سے انکار کے بعد خطرہ تھا، جان کیری کا بیان۔ امریکہ نے وزیراعظم اور آرمی چیف سے ڈرون حملے کے بعد معلومات شیئر کی۔ کارروائی میں ولی محمد سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے، دفتر خارجہ کا بیان۔ ملا منصور اختر کے مارے جانے کی تصدیق سے گریز۔ کوچ کے حملے میں مرنے والے ولی محمد کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دنیا نیوز پر۔ کراچی میں گھر کا بھی پتہ چل گیا، اہل علاقہ کا بات کرنے سے انکار۔ سوات میں بھی ایئرپورٹ اناؤنس کر دیا ہے، ڈی آئی خان میں بھی ایئرپورٹ اناؤنس کر دیا ہے۔ میاں صاحب آپ اتنی دیر رہیں گے تو ایئرپورٹ بنے گا نا۔ کپتان کو وزیر اعظم کی چھٹی کا یقین، اب فضل الرحمان اور امیر مقام بھی نہیں بچا سکتے۔ نیا خیبر پختونخوا تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں بن رہا ہے۔ سوات میں دھواں دھار خطاب، عمران خان نے مستقبل کے ارادے بھی بتا دیے۔ میاں صاحب اگر ہم کرپٹ تھے ہمیں پکڑنا کس نے تھا؟ آپ نے پکڑا کیوں نہیں ہمیں؟ کیونکہ میاں صاحب اگر ہماری حکومت آ گئی ہم نہیں کہیں گے آپ کرپٹ ہیں، ہم یہ نہیں الزام لگائیں گے آپ پہ، ہم آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے۔ نئے خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ پرویز رشید کا رد عمل، کہتے ہیں وزیر اعظم کے ترقیاتی منصوبوں پر تنقید کے لیے عمران خان سوات گئے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف طبی معائنہ کرانے کے لیے لندن پہنچ گئے، کچھ دیر میں میڈیا سے گفتگو متوقع۔ بار بار موقف بدلنے والوں کی کسی بات کا اعتبار نہیں، شہباز شریف کی تنقید، کہتے ہیں قرض معاف کرانے والوں سے ایک ایک پائی کا حساب لینے کا وقت آ گیا۔ Offshore companies are not illegal, but offshore company disclosure, transparency and lawful business must be properly regulated. آف شور کمپنیاں بنانا غیر قانونی نہیں، اسحاق ڈار کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز پر 2 روز تک کام شروع کر دے گی۔ ایاز صادق کا کہنا ہے اپوزیشن کے نام مل گئے، حکومت کل بتائے گی۔ پاناما لیکس معاملے پر تمام راستے بند ہوئے تو سڑکوں پر آنا پڑے گا، خورشید شاہ کی وضاحت۔ نواز شریف کو بحرانوں میں آصف زرداری ہی یاد آئیں گے، مولا بخش چانڈیو وزیر اعظم کے لیے فکر مند۔ ہم ان کو بحرانوں سے بچاتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو بچاتے ہیں، ہم جمہوریت کو بچاتے ہیں، لیکن کیا کریں اس حکومت کا؟ آپ دیکھیں وقفے وقفے سے یہی کہتے ہیں آ بیل مجھے بار۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی کرپشن فری پاکستان مہم کے تحت چلڈرن واک، رہنما کہتے ہیں بیرون ملک علاج کرانے والے حکمرانوں کے دن پورے ہو گئے۔ شب برات، دعائیں مانگنے کی رات، خصوصی عبادات کا اہتمام، مساجد اور گھروں پر چراغاں۔ عمران فاروق قتل کیس اور ایم کیو ایم کی منی لانڈرنگ کا معاملہ، مزید شواہد کا جائزہ لینے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی 6 رکنی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے نئی حکمت عملی بنا لی گئی، ضلع وسطی اور غربی کے حساس علاقوں میں کمانڈوز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب سے 3 افراد کی لاشیں برآمد، شناخت نہ ہو سکی، ڈی این اے کرانے کا فیصلہ۔ گجرانوالہ کے علاقے برکت کالونی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کوریج پر مالکان کا دنیا نیوز کی ٹیم پر تشدد، کیمرہ ہی توڑ ڈالا۔ 6 روز سے دہائی رنگ لے آئی، ملتان میں نشتر اسپتال کی نرسوں کا احتجاج ختم، سپرنٹینڈنٹ نرس کی تبدیلی پر گلاب جامنیں بڑھ گئیں۔
फैसल आबाद रीजन में बनाई गई फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी खंडर का मंजर पेश करने लगी। इमारत नामुकम्मल, स्टाफ ना मशीनरी, अवाम मिलावट माफिया के रहमो करम पर। कौन सी चीज़ ख़राब खा रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि इस लेबॉरेटरी को जल्द से जल्द तमीर किया जाए। हमें क्या पता कुत्ते का खिला रहे हैं क्या बिल्ली का खिला रहे हैं गोश्त, या दूध में क्या क्या मिला रहे हैं। अगर वो लेबॉरेटरी या मुकम्मल हुई तो यहाँ पे टेस्ट होते। सूरज का तीखा मिजाज, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। पंजाब के तालीमी इदारों में 24 मई से 14 अगस्त तक ताबीना। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आनियां जानियां इंतहा को पहुंच गई। कहीं तकनीकी खराबी और कहीं वोल्टेज की कमी। लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिया। जो घंटे लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से इतनी गर्मी है कि यूपीएस भी खत्म हो गए हैं। गर्मी इतनी होती है, सारा दिन लाइट ही नहीं आती और बच्चे गर्मी की वजह से हाल बेहाल हो जाते हैं। लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी हो रही है कि बच्चे 7 दिन तड़पते हैं, पूरी दिन लाइट नहीं है। पंखा ना पानी, परेशानी ही परेशानी। लाहौर के एतवार बाजारों में सहूलतों की कमी, दुकानदारों और खरीदारों की जबान पर शिकवे। पखा नहीं है, गए थे, पानी नहीं है। हम गर्मी से आधे घंटे से आए हैं, देखे हम पानी भी नहीं मिल रहा हमें। एक नागन थी जो मेरी ज़िंदगी में आई है, 5-6 साल तक वो रही है मेरे साथ। सांपों को सपेरों ने ये कहकर बंद कर दिया कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। शीशनाक से प्यार, इंसान का डसा सलीम सांपों का यार। इस्लामाबाद के नौजवान ने बेवफाई के बाद तन्हाई के साथी ढूंढ लिए। सारे फोटोग्राफर्स को इकट्ठा किया था कि वो कैप्चर करें पाकिस्तान की ब्यूटी को, इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ को भी। अभी हम ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर का हमने टूर किया। तारीखी इमारतों की खूबसूरती कैमरे की आंख में महफूज। तलबा और तालिबात की सेल्फीज, लाहौरी तालिब इल्मों का छुट्टी के रोज हल्ला गुल्ला। बल्लेबाजों को खामियां दूर करने के लिए मेहनत का मशवरा। यासिर शाह की इंजरी टीम के लिए बड़ा नुकसान करार। क्रिकेट दीवानगी में सलीम मलिक, इकबाल कासिम ने दौरे इंग्लैंड में फतह के गुर बता दिए। गर्मी नॉकड आउट। लाहौर में ऑल पंजाब किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। खिलाड़ियों की हुकूमत से सहूलतें देने की अपील। हुकूमत को चाहिए कि हमें ना एक ये क्लब उधर नेशनल लेवल पे बना के दिया जाए। मैं बॉक्सिंग जीता हूँ, इस तरह के मुकाबले गवर्नमेंट को चाहिए होने चाहिए। और पाक चीन दोस्ती के 65 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान के सरबराह की हलाकत के मामले पर दफ्तर खारिजा ने तस्दीक की है, ना ही तरदीद की। 21 मई को अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले की इत्तला दी, ये बताना है दफ्तर खारिजा का। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि अमेरिका ने आगाह किया कि मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया है। जबकि दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह भी बताया कि ड्रोन हमले के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ से मालूमात का तबादला किया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अब तक की मालूमात के मुताबिक वली मोहम्मद नामी शख्स ईरान से आया। वली मोहम्मद के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उस पर ईरानी वीजा लगा हुआ था और वली मोहम्मद तफ्तान बॉर्डर से 21 मई को पाकिस्तान आया। और इसी से मुंसलिक खबर यह भी कि वली मोहम्मद ने किराए पर गाड़ी ली जो तबाहशुदा हालत में कोचकी से मिली है। दफ्तर खारिजा का यह बताना है कि हमले में ड्राइवर मोहम्मद आजम हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त कर ली गई है। मुल्ला अख्तर मंसूर
मंसूर की हलाकत की इत्तलात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका ने ड्रोन हमले के बाद मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर की। हफ्ते की सुबह किए गए हमले के बारे में वजीर आजम और आर्मी चीफ से मालूमात का तबादला किया गया। अमरीका ने बताया कि ड्रोन हमले में मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब तक की मालूमात के मुताबिक गाड़ी पाक अफगान सरहद कोचकी पर तबाहशुदा हालत में मिली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ हैं। 4 मुल्की ग्रुप के 5वें इजलास में तय हुआ था कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाएगा। इससे पहले अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अमरीकी ड्रोन हमले से अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक की। पेंटागन के मुताबिक हमला अमरीकी सदर बराक ओबामा के हुक्म पर किया गया था। तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत एक और अहम तरीन खबर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत अफगान तालिबान के लिए बड़ा धचका साबित होगा। सदर अशरफ गनी कहते हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर को पाक अफगान सरहद पर निशाना बनाया गया। पेंटागन के तर्जुमान पीटर कुक का कहना है कि हमला अमरीकी सदर बराक ओबामा के हुक्म पर किया गया। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी का कहना है कि मुल्ला अख्तर मंसूर पर ड्रोन हमले से मुताल्लिक वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन पर बताया था। जॉन कैरी के मुताबिक अमन मुज़ाकरात से इनकार करके मुल्ला अख्तर मंसूर एक मुस्तकिल खतरा बन चुका था। Yesterday, the United States conducted a precision airstrike that targeted Taliban leader Mullah Mansour in a remote area of the Afghanistan-Pakistan border region. अमेरिका की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन जॉन मैकेन का कहना है कि मुल्ला अख्तर मंसूर अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। अमरीकी सदर ओबामा मुल्ला अख्तर मंसूर को अफगानिस्तान में अमन और मुफाहिमती मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट समझते थे। अमरीकी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि एक सीनियर तालिबान रहनुमा ने मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलत साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो वाज़ेह है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान जो ये एहतियात बरत रहा है इसकी वजह क्या है? जी देखिए, बात दरअसल ये है कि ये ड्रोन हमले तो मुसलसल होते रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। ये तो कोई शायद 47वां हमला था, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि ये हमला पाकिस्तान में हुआ जो पहले नहीं होता था, लेकिन आखिर कबायली इलाके भी तो पाकिस्तानी के इलाके हैं। इसके अलावा ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ये कोशिश में था कि मुल्ला मंसूर से की क़यादत में बातचीत का सिलसिला शुरू हो और उस पर दबाव डाल रहा था। लेकिन इस वाक़े के बाद तो फिर आपको पता है पहले से ही मामलात इतने नाजुक हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो पहले नाकाम रही हैं। अब उसकी उम्मीद थी कि शायद अब मुल्ला मंसूर जो हैं इस पर रजामंद हों कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, तो इस पर पानी फिर गया। अब नई क़यादत या देखना ये है कि किस तरीके से वो अपने आप को मुस्तहकम पहले करेगी और क्या उनमें इख्तिलाफात हो जाएंगे, और अगर इख्तिलाफात होते हैं तो कितना अरसा लगेगा नई क़यादत है उसको मुस्तहकम होने के लिए। उसके बाद फिर देखना ये है कि क्या वो वाकई में बातचीत के लिए तैयार होंगे या फिर यही सिलसिला जारी रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान में ये समझता था कि इसका सिर्फ हल एक सियासी हल है जिसमें पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब आपका। नाज़रीन, पाक अफगान सरहद के करीब हलाक होने वाला वली मोहम्मद का पासपोर्ट पाकिस्तानी और शनाख्ती कार्ड कला अब्दुल्ला का था। वो ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। मरने वाला दूसरा शख्स मोहम्मद आजम और बताया जाता है कि वो ड्राइवर था।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निजी कंपनी की गाड़ी हफ्ते की सुबह पाक अफगान सरहद के करीब कोचकी के मकाम पर तबाह हुई। हमले में 2 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वाला एक शख्स वली मोहम्मद वल्द शाह मोहम्मद है। इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी और शनाख्ती कार्ड कला अब्दुल्ला का था। तर्जुमान के मुताबिक वली मोहम्मद के पासपोर्ट पर ईरानी वीजा लगा हुआ था और वो 21 मई को तफ्तान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मरने वाला दूसरा शख्स मोहम्मद आजम ड्राइवर था। मोहम्मद आजम के भाई मोहम्मद कासिम ने दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि उसका भाई तकरीबन 9 साल से टैक्सी ड्राइवर था। हफ्ते को दफ्तर से फोन आया कि गाड़ी जल गई है। वाकई का कैसे पता चला? कल दफ्तर वाले ने फोन किया कि गाड़ी जल गया रास्ते में। तो ये कितने अरसे से चला रहा था? ये 8-9 साल से। 8-9 साल से? जी, दफ्तर से सवारी उठाया, पासपोर्ट वाला था। अच्छा जी। दूसरी जानिब दोनों अफराद की लाशों का कोयटा में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वली मोहम्मद के सर और धड़ को खासा नुकसान पहुंचा। मोहम्मद आजम की लाश झुलसी हुई है। लाशों में लोहे के टुकड़े भी मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वली मोहम्मद की कराची में रिहाइशगाह का सुराग दुनिया न्यूज ने लगा लिया है। वली मोहम्मद सोहराब गोट के करीब बिस्मिल्लाह टेरेस का रिहायशी है। फ्लैट गुज़श्ता कई रोज से बंद है। इस बारे में तहा उबैदी की रिपोर्ट। नौशकी में होने वाले रॉकेट हमले में हलाक मोहम्मद वली का सुराग दुनिया न्यूज ने लगा लिया है। नौशकी में 2 अफराद की हलाकत के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़्त से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किया है, जिसमें मोहम्मद वली नामी शख्स का मुस्तकिल पता किला अब्दुल्ला और आर्जी पता कराची के इलाके सोहराब गोट की रिहायशी इमारत बिस्मिल्लाह टेरिस के फ्लैट नंबर 2016 है, जो गुज़िश्ता कई रोज से बंद है। मोहम्मद वली के पड़ोसी और रिहायशी इमारत के चौकीदार का कहना है कि फ्लैट नंबर 2016 में कौन रहता है इनको मालूम नहीं। फ्लैट में गुज़िश्ता कई रोज से ताले पड़े हैं। रिहायशी इमारत की यूनियन ने दुनिया न्यूज से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि यूनियन के ओहदेदारों का कहना है कि वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस फ्लैट में कौन रहता है और क्या काम करता है। मोहम्मद वली का शनाख्ती कार्ड मिलने के बाद कराची में भी सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आ गई हैं। कैमरामैन इमरान शेख के साथ तहा उबैदी, दुनिया न्यूज कराची। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद जहरीले सांपों से दोस्ती। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब यहाँ खबर के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन वाले करप्ट थे तो हुकूमत ने पकड़ा क्यों नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने आज मिंगोरा में जलसे आम से खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि इख्तिदार में आकर इल्जाम लगाने के बजाय सीधा करप्शन करने वालों को जेलों में डालेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा, मुखातिब करते हुए, कि मियां साहब आप रहेंगे तो सड़कें और एयरपोर्ट बनेंगे। अब आपको मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मुकाम भी नहीं बचा सकेंगे। स्वात में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि जब से पनामा पेपर्स आया है वजीर आजम दौरे कर रहे हैं, वो जितने मर्जी जलसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मियां साहब आप रहेंगे तो सड़कें और एयरपोर्ट बनेंगे। अब तक आपने मुद्दत पूरी नहीं की। जब से पनामा आया है तो मियां साहब सारी जगह आप जा रहे हैं, सड़कें, एयरपोर्ट। स्वात में भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया है, डीआई खान में भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया है। मियां साहब आप इतनी देर रहेंगे तो एयरपोर्ट बनेगा ना। इमरान खान ने कहा कि अजीम कौमें पहले स्कूल फिर मोटरवे बनाती हैं। कहते हैं अगर ऑपोजिशन वाले करप्ट थे तो हुकूमत ने पकड़ा क्यों नहीं। कहते जी इमरान खान भी करप्ट है, वो खुर्शीद शाह भी करप्ट है, वो जहांगीर तरीन भी करप्ट है, यानी सारे करप्ट है। तो मियां साहब अगर हम करप्ट थे, हमें पकड़ना किसने था? आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें? क्योंकि मियां साहब अगर हमारी हुकूमत आ गई, हम नहीं कहेंगे आप करप्ट हैं, हम ये नहीं इल्जाम लगाएंगे आप पे, हम आपको पकड़ के जेलों में डालेंगे। इमरान खान ने कहा कि पनामा तहकीकात के मामले पर ऑपोजिशन ने साथ ना दिया तो अकेले ही तहरीक चलाएंगे। वजीर आजम से जवाब लेने के लिए आखिर तक जाएंगे। हम पूरी ऑपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें अकेला भी जाना पड़ा, इमरान खान और तहरीक इंसाफ आखिर तक जाएगी कि मियां साहब कौम को जवाब दो। इमरान खान ने कहा 30 साल से पंजाब में बारियां ले रहे हैं, कोई एक इदारा ठीक तरह से नहीं चला सके। आइंदा वजीर आजम आए तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपना बिजली, गैस और पानी का शेयर मांगे। उधर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि ऑफ शोर कंपनीज बनाना
غیر قانونی نہیں ہے۔ TORs پارلیمانی کمیٹی 2 روز تک اپنا کام شروع کر دے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے حکومت کے نام کل تک آ جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی پیناما لیکس پر معاشی و قانونی نکتہ آرائی، آف شور کمپنیز قانونی قرار دے دیں۔ Offshore companies are not illegal, but offshore company disclosure, transparency and lawful business must be properly regulated. So it is the responsibility of the SECP, of the State Bank of Pakistan, of the Federal Bureau of Revenue. اسحاق ڈار نے TORs طے کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن 1-2 دن میں ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پارلیمانی پروسیجر اس وقت چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ ہیز آفرڈ ود اوپن ہارٹ کہ جی آئیں، آپ کمیٹی بنائیں۔ کمیٹی از ان دا پروسیس آف مے بی نوٹیفائنگ being notified on next day or two, and then the process will start. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ حکومت کے نام ملتے ہی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ حکومت کے انفارملی مجھے نام بتا دیے گئے ہیں، مگر سینٹ کے جو نام ہیں اپوزیشن کے وہ ابھی تک نہیں آئے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اس سے پہلے سردار ایاز صادق نے لاہور میں یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ اسپیکر نے سابق وزیر اعظم کو بیٹے علی حیدر گیلانی کی بازیابی پر مبارکباد دی۔ اور وزیر اعظم کی بنائی سڑکوں پر اور بھی کوئی آنا چاہ رہا ہے۔ پیناما لیکس پر خورشید شاہ نے پارٹی پالیسی بتا دی۔ کہتے ہیں اگر تمام آپشنز ختم ہو گئے تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جبکہ مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ پاناما لیکس کا ہنگامہ برقرار، آئے روز اپوزیشن کے حکومت پر نئے وار۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو وقت دے رہے ہیں، وہ تمام معاملات کی وضاحت کریں۔ اگر تمام آپشنز ختم ہو جائیں گے تو پھر سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، پارلیمنٹ بے بس ہو جائے گی، حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مگر میں پر امید ہوں کہ میاں صاحب، اس کی جو ٹیم ہے، اس میں سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بہتر راستہ نکالیں گے۔ دوسری جانب مولا بخش چانڈیو نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو بحرانوں میں آصف زرداری ہی یاد آتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار۔ ہم ان کو بحرانوں سے بچاتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو بچاتے ہیں، ہم جمہوریت کو بچاتے ہیں، لیکن کیا کریں اس حکومت کا؟ آپ دیکھیں وقفے وقفے سے یہی کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، سکون سے چل نہیں سکتے۔ مشیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے 3-4 وزراء کو جمہوریت اور وزیر اعظم کا سکون اچھا نہیں لگتا۔ اور بلیٹن میں بھی ایک بریک، لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس۔ ویلکم بیک۔ جہنم سے چھٹکارے اور رحمتوں کے نزول کی رات آ گئی۔ ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ انتظامات کیسے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے اسرار خان، جبکہ کراچی سے طارق عزیز ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور میں اسرار سے بات کر لیتے ہیں۔ اسرار، آگاہ کیجیے گا، تقسیم قسمت انسانی کی رات ہے، ایمان کی روشنی کے لیے کیا اہتمام کیے گئے؟ جی عائشہ، ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی شب بارات انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ لوگ خصوصی عبادات کے سلسلے میں مساجد کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات کہا جاتا ہے اور رات بھر خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی جانب سے خصوصی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اجتماعی دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہی صورتحال ہے لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کی، اور لوگ جوک در جوک مساجد کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی اسرار، یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور میں عام دنوں میں شکایت کی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے عبادت گزاروں کو، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شب بارات کی تمام رات کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہ کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور رات بھر لوگ بآسانی مساجد میں یا اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، طارق عزیز سے جانتے ہیں کراچی کی صورتحال۔ طارق، آگاہ کیجیے گا، بخشش طلب کرنے والے آج کیا اہتمام کیے ہوئے ہیں عبادات کا؟
जी बिल्कुल, रहमतों और मग़फ़िरतों की रात शब बरात के मौके पर कराची में भी घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। लोग अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की तौबा के लिए सरबसजूद हैं। खुसूसी नवाफिल, ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत और अस्कार का सिलसिला भी और तस्बीहात का सिलसिला भी जारी है। रिवायत है कि शब बरात के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। और इस शब बरात के मौके पर नबी मेहरबान की सुन्नत के मुताबिक कब्रिस्तानों में भी ज़ियारतों का सिलसिला जारी है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी दे रहे हैं और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी में मसरूफ़ हैं, जबकि फूलों की पत्तियां भी निछावर कर रहे हैं। इस हवाले से कब्रिस्तानों में सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के भी काफ़ी बेहतर इंतजाम देखने में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कि दावे जो किए गए थे उस हवाले से पानी की कुछ शॉर्टेज नजर आ रही है। लोड शेडिंग का लाहौर से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ आपको लंदन लिए चलेंगे, जहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं लंदन पहुँचने के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि लंदन पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो चंद रोज़ क़याम करेंगे। 5 रोज़ के बारे में बताया जा रहा है क़याम करेंगे, जहाँ पर उनके मेडिकल टेस्ट होंगे, चेकअप होगा। इससे पहले भी वो गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, उनके कुछ टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स आई थी और अब एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुँचे हैं लंदन, जहाँ पर वो इस वक्त दीगर जो UK के मरकज़ी कायदीन हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 7 एवनफील्ड हाउस जो कि रिहाइश गाह है वज़ीर आज़म के साहबजादों की, लंदन में पौश इलाका है ये और अक्सर खबरों की जीनत भी बना रहा है। उसी के बाहर इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। मीडिया के नुमाइंदों के अलावा मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की एक बड़ी तादाद इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लंदन में तकरीबन 1 हफ्ता क़याम करेंगे। तिब्बी मुआयने के अलावा सियासी सूरत हाल का मुआयना भी किया जा सकता है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो वहीं रिहाइश पजीर हैं उनसे मुलाकात की भी चहमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन इस सिलसिले में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मीडिया के नुमाइंदों की एक भीड़ मौजूद है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म कब तक मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और मीडिया के सवालों के क्या जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून UK के सदर ज़ुबैर गुल उनके साथ मौजूद हैं, जबकि दीगर मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पर हैं और बंदोबस्त किया जा रहा है कि सारे कैमरे जब कतार में हो जाएं और सफ़ें अपनी दुरुस्त कर लें तो उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और अग़राज़ व मक़ासिद से आगाह करें कि वो लंदन पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद अब उनकी क्या मसरूफियात होंगी और जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं उनके इस दौरे से मुतालिक उसकी क्या वजाहत पेश करते हैं भी या नहीं। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब गुफ्तगू शुरू ही किया चाहते हैं। जुबैर साहब अपने वर्कर्स को पीछे कर लें प्लीज प्लीज। अब ऐसे थोड़ा पीछे तक आप भी पीछे हट जाए भाई, पीछे हट जाए, पीछे चले ना, पीछे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हक साहब आपके पीछे कैमरा है, साइड बस खामोशी। मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई है, जॉन यार ये तो छोड़ो ना मुझे, शबीर साहब पीछे हो जाओ। आप तो ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इस बात? देखिए बात ये है, एक तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई है, ये नहीं हुई, और ये भी कंफर्म हो रहा है ये जो एक मोहम्मद वली नामी आदमी जो है वो उसका पासपोर्ट मिला है और साथ ही साथ जो है वो उसका ID कार्ड मिला है। फिर ये भी पता लगा कि वो किला अब्दुल्ला का रहने वाला था, लेकिन वहाँ से जो अभी तक इत्तला है वो ये कि अभी कोई क्लू नहीं मिला वहाँ से। फिर एक दो जगह और भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई वो उस जगह के रहने वाले हैं या नहीं, वो भी अभी तक नहीं पता लग सका। तो अभी हमें हतमी तौर पे पता नहीं है कि ये मुल्ला मंसूर थे या कोई और था, लेकिन जो जॉन कैरी का टेलीफोन जो आया है मुझे, वो आया था रात के वक्त, तो कल रात को 10:30 बजे, यानी तो ये हलाकत के बाद। और इसमें जो
चीफ आर्मी स्टाफ को जो इतला उनके कमांडर की तरफ से जो मौसूल हुई थी वो भी जो है वाक़े के बाद हुई है, और उन्होंने फिर मुझसे भी बात की चीफ आर्मी स्टाफ ने। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जॉन कैरी का फ़ोन आया, तो क्लियरली अपना ये जो वाक़या हुआ है ये उसके बाद उन्होंने हमें इसकी इतला दी है, और ये यकीनन वायलेशन प्राइम मिनिस्टर साहब जो सूरत नजर आ रही है, जो पनामा लीक्स पे जो सूरत थी उस पे सूरत काफी बदल गई है। जो लोग इल्जामात लगा रहे थे अब उन्हीं की ऑफशोर कंपनियां भी निकल आई हैं और उन्हीं के टैक्स के मैटर्स भी सामने आए, और उन्होंने यहाँ पे इकरार भी किया है कि वो टैक्स बचाते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया में। क्या आप समझते हैं कि जो पनामा लीक्स का जो हवा भरी गई थी वो सारी हवा निकल गई है, और जो इल्जामात लगा रहे थे वो आज खुद फंस चुके हैं? और दूसरा, आप जब ज्यादा बाहर नहीं निकलते तो आपके नाकदिन कहते हैं कि आप चुप करके बैठे हैं, और जब आप जलसे करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वो जब जलसे करते हैं वो पीछे आते हैं। तो इस पे दोनों क्वेश्चंस पे जरा आप लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना शोर उन्होंने मचाया है इस इशू पे, मेरे ख्याल है कि उनके अपने भी सारे कच्चा चिट्ठा जो है वो सब खुल के सामने आ गया है, पोल खुल गए हैं सारे, और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे बल्कि सब लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ये बात। तो मेरा ख्याल है कि जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद जब वो साफ नहीं होता तो ज़ाहिर है फिर उसकी अपनी चीज़ें भी बाहर आती हैं। करते थे कि मॉरल हाई ग्राउंड में हम बहुत पाक साफ है, लेकिन अब ये पनामा में नाम आ जाना, ऑफशोर कंपनीज का निकल जाना, इस सिलसिले में आपने एक पर्सनल असेसमेंट किया? मॉरल हाई ग्राउंड मॉरलिटी कहाँ रहती है फिर इसके बाद? कौन सी मॉरल हाई ग्राउंड? यानी दूसरों के लिए तो मॉरल हाई ग्राउंड की बात करना और अपना ये हाल हो जाना कि अपने भी सारे राज फाश हो गए, अपने भी सारे राज फाश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ये ख्याल है कि इंसान को पहले अपने गिरेबान में अपनी गर्दन में झांक कर देख लेने की जरूरत होती है, बेशतर इसके कोई किसी पे इल्जाम लगाए। अपोजिशन के जलसे तो समझ आते हैं, हुकूमत किस लिए जलसे कर रही है? पाकिस्तान के अहम दो शख्सियात मौलाना फजल रहमान और ज़रदारी साहब यहाँ पे हैं, आपके बरतानिया आने का मकसद क्या है? बरतानिया आने का मकसद मेरा वो रिव्यू है, और मैं अपना इंशाल्लाह जैसे ही होगा ख़त्म मैं वापस चला जाऊंगा। शादी को बीमारी के बावजूद जो जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप भी कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए एक मुहिम शुरू कर दिया आपने? नहीं, ये तो मैं तो डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा जाता हूँ, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त डेवलपमेंट माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ उसमें आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सी पैक है। तो इसमें हम अपना माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं, और अल्लाह ताला चाहेगा तो अगले 2 साल में और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ और स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तो इस नज़रिए से जाता हूँ वहाँ पे लोग माशाल्लाह मिलते हैं, आते हैं, और अभी सवात गया था, बड़े पुरजोश थे, और काश के वहाँ की हुकूमत वालों को और जो नया पाकिस्तान बनाने वाले दावे करने वालों को ये मंजर देखने का मौका नसीब हो कि अवाम उनके बारे में अब क्या राय रखते हैं। क्या आप उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आए बैठे पाकिस्तान की भलाई के लिए एक पेज पे आके मुजाहरे छोड़ के आगे बढ़ने की बात करें? मैंने जावेद साहब उनके अभी जो तकरीर की थी या जो मैंने अपना एड्रेस किया था नेशनल असेंबली को, मैंने बहुत तफसील के साथ सारी बातें बताई हैं, और आप यकीन करें कि तकरीर करने से पहले मैं सोचता था कि क्या मैं ये असेंबली में ये बात करूं या मैं जब कमिश्नर बनेगा तो वहाँ ये बात करूं। तो मैंने जो कमीशन में बात कर दी थी, बहुत सारी बातें कमीशन वाली जो है वो मैंने असेंबली में कर दी। मैंने ये भी बता दिया कि दुबई कब गए थे, और मैं तकरीबन तालिब इल्म था उस ज़माने में, और फिर वहाँ पर किस सन में फैक्ट्री लगाई और किस तारीख को बेची और कितने में बेची, वो सारी तफसील मैंने बताई। जद्दा में कब फैक्ट्री लगाई और जद्दा में जो है वो किस सन में बेची और कितने की बेची,
ये सब बातें मैंने तफसील के साथ बताई और फिर कहा कि जी जो लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो इसी आमदनी से हमने ख़रीदे। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं जैसे मैंने अभी कहा कि दुबई का जो मामला है, मैं दूर दूर तक मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, हमारी फैक्ट्री जो है वो हुकूमत ने हमसे छीन ली थी, तो ऐसे में क्या हमारी तो अपनी जेबें खाली थी। कोई ऐसे हाल में कोई अपना कौन से पैसे को अपना जो है वो बंदा मुल्क से लेके बाहर जा सकता है जब मुल्क के अंदर पैसे ना कोई बचा हो। और फिर जब 1999 में जब 2000 में जब हम जद्दा गए तो उस वक्त मैं सीधा जेल से जहाज़ में मुझे लेकर गए और फिर जिस तरह से मुशर्रफ ने सब कुछ सील कर रखा था, तो एक तो इस ऐसे हालात में बाहर गए, ऊपर से फिर ये कहें जी या आप बताएं जी हिसाब दें, ये फिर यानी पहले इस तरह का सलूक हमारे साथ करें, ऊपर से हिसाब मांगे। हमला जो है वो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, उसका एहतजाज किस लेवल पर रिकॉर्ड करवाया जाए? अभी तक तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सामने आज आई स्टेटमेंट एहतजाज है और बिल्कुल बड़ा सख्त एहतजाज है और ये कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैं अभी इस सिलसिले में आपको पहले भी कह चुका हूँ और ये पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेंटी जो है उसको अपना उसकी खिलाफ वर्जी। मियां साहब जो आपने ये फ्लैट खरीदे थे, जब ये खरीदे गए 10 साल 15 साल पहले, लंदन में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत, एक मिनट यार, लंदन की प्रॉपर्टी अफगानिस्तान के हवाले, जब आपके ये लंदन में प्रॉपर्टी जो है पिछले 10 साल में 40 से 50% ऊपर गई है, जब ये खरीदे गए थे ये उस वक्त की कीमत कोट नहीं हो रही है, आज की कोट हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो इजाफा है ये तो आपके खाते में नहीं है, इसमें जो ओरिजिनल प्राइस पे और मॉर्गेज पे थे उस पे कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखें बात ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये जब हम खुद कह रहे हैं कि पहले तो ये इस्टेब्लिश होना चाहिए ना कि क्या कोई हमने किक बैक किसी जगह किसी वक्त लिया, क्या हमने कोई कमीशन खाई आज या 1990 में 94 में 97 में या 1985 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, क्या हमने कोई गलत कारी की? क्या हमने कोई अपना जो है वो किसी चीज़ में ऐसी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर ना की गई हो, जिसमें शफाफियत ना हो? ये इस्टेब्लिश करें बात, ये तो वो कर नहीं पाते और ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात है, ये जम करके आगे आते हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके सहारे से हुकूमत अपने आप को मजबूत कर रही है, क्या हुकूमत इतनी कमजोर हो गई है कि मौलाना फजल रहमान के सहारे की जरूरत है? ये इमरान खान कहते हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, अब मैं तो उनकी सारी बातों पर आप क्या ये रीअश्योर करवाएंगे कि जो भी कमीशन बनेगा आप हर लेवल पर फुल फ्लेज कोऑपरेट करेगी आपकी हुकूमत उनके साथ? मैं तो कह चुका हूँ। और इसमें क्या जिन लोगों की शुगर मिल जो कर्जे जिन लोगों ने माफ करवाए और जो जिनके ऑफशोर कंपनी जनरली निकली है और जिनके बारे में जी हमने जो भी कमेटी बनी है हाउस की, उसमें तो हमने जो स्पीकर साहब ने बनाई है उसमें तो यही बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जिन्होंने किक बैक्स लिए हैं, कमीशनें खाई हैं और जिन्होंने जो है वो कर्जे माफ़ कराए हैं, क्या उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? और फिर आप ये देखें, कर्जा माफ जब कराते हैं तो कर्जा वो माफ कराता है जो बैंकरप्ट हो चुका होता है, जिसको क्या कहते हैं बैंकरप्ट को, दिवालिया हो जाता है, वो कर्जा माफ कराता है। और ये सियासी तौर पे कर्जे माफ कराए गए हैं। जब कर्जे माफ कराए थे तो उस वक्त भी वो सनतों के मालिक थे और आज वो 10 गुना ज्यादा सनतों के मालिक हैं, 10 गुना ज्यादा अमीर हैं। देखो गरीब इंसान की, पाकिस्तानी की जो खून पैसे की जो कमाई है, जो बस खून पसीने की कमाई जो है, वो ये अपने कर्जे माफ करवा दे और हम उसको ये कौम देखती रह जाए, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि जो पाकिस्तान के हालात है उनसे कोई प्रॉब्लम इनको नजर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो दर्दों से परेशान होते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या रीश्योर करना चाहेंगे सरमायाकारी के लिए? कल भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन में इस हवाले से। पाकिस्तानी आए और आके सरमायाकारी करें, इंशाल्लाह। बिजली भी आ रही है, अभी भी 100%
100% बिजली दी जा रही है सनत को, 100% गैस दी जा रही है सनत को। पाकिस्तान में लोड शेडिंग कम से कम सतह पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आए, जब तक वो इंडस्ट्री लगाएंगे इंशाल्लाह बिजली उनके कारखानों तक पहुंचेगी, उनके यूनिट्स तक पहुंचेगी और गैस भी आएगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनको बहुत फायदा होगा। जो है अपने जलसों में हिसार की तारीफें करते फिर रहे हैं, तो साहब आपने केपी का दौरा किया, बॉर्डर के ऊपर आपको कहीं नया पाकिस्तान चेक पोस्ट अंगूर अड्डा अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया, क्या आपकी नॉलेज में है ये? आप शाह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फारूक शाह साहब, फारूक शाह जी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। इस वक्त नेटो को इत्तेहादी बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेंक रहा है। आप ये बताएं कि अमेरिका के हमने कौन सा ऐसा वो किया है कि वो भारत की तरफ जो है वो रजू कर रहा है? और मेरा यही क्वेश्चन है कि ये बैठ के बात करने वाली बात है। ये सवाल और जवाब में मसला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंचने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आखिर में उन्होंने दावत दी गैर मुल्की लोगों को, या फिर यह कहा जाए कि उन पाकिस्तानियों को जो कि बाहर रहते हैं, कि पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। लोड शेडिंग कम हो रही है, गैस भी आ रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई है या फिर नहीं। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही खबर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही।